Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama 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 Rama, Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama 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 Rama, Hare 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 Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama 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 Rama, Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Prabhu Hare Krishna Prabhu जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, जिनकी को रीड कर रीड करना हो फिर अपना हैंड रेज करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट बात बार बार भूल जाते हैं। इनफैक्ट आज ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एकादशी कब है? आज है कि कल है? एकादशी कब है? आज है कि कल है? कल है हाँ? प्रभु। कल है? एकादशी कब है? कल है? एकादशी कब है? आज है, कल है? कल है प्रभु जी कल है? और कोई कल है? कल है? एकादशी आज ही है, परंतु हम पालन कल करेंगे। कल महाद्वादशी है ना? बहुत बार हम लोगों ने देखा हुआ है। हाँ, कल स्वादशी नहीं, द्वादशी, महाद्वादशी है। कल महाद्वादशी है, ठीक है? तो कल ज्यादा कृपालु होता है ना? एकादशी आज है, परंतु हम लोग एकादशी का पालन नहीं करते, महाद्वादशी का पालन करते हैं। जब भी द्वादशी में एकादशी का थोड़ा सा भी अंश होता है तो द्वादशी का पालन होता है। ये नियम बहुत बार बताया हुआ है और इसीलिए कल एकादशी के व्रत का पालन, ठीक है? क्लैरिटी है सभी को? कुछ लोगों से सुन रहे होंगे ना, आज है एकादशी, सच बोल रहे हैं, गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। परंतु हम अपना नियम है ना थोड़ा सा, देखिए कृष्णा है ना एकदम सरलता से समझ में आने वाले नहीं है, हैं? इसी इसी तरीके से कृष्णा के जो नियम होते हैं ना, वो एकदम हम अपनी बुद्धि से चला लें, हैं? और फिर हम समझने का प्रयास करें। फिर पता चलेगा नियम के ठीक विपरीत एक नियम था। क्या? महाद्वादशी को व्रत करेंगे तो 10 गुना बेनिफिट होगा और महाद्वादशी को ही व्रत करना उत्तम है। अगर एकादशी का कुछ अंश द्वादशी में तो आई एम जस्ट सेइंग 10 गुना, मेरे को नहीं मालूम है कितना लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, मेरे को नहीं समझने का प्रयास भी करना। जितना बेनिफिट होना है उतना ही होगा ना, उसको जान करके क्या लाभ, ठीक है? तो आप समझिए कि क्या होता है कि जब द्वादशी को व्रत करें तो उसका ज़्यादा लाभ होता है ना? तो हमको वही करना है जो शास्त्र सम्मत हो, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया हो। हमारी बुद्धि कहाँ चलती है? हमारी बुद्धि नहीं चलती है। बुद्धि अनुसार चलेंगे तो फेल हो जाएँगे, यही है। क्या करेंगे? बुद्धि अनुसार चलेंगे। अच्छा व्रत करना चाहिए। कौन-सा? सबसे अच्छा व्रत कौन होगा? एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा, ये रहा, एकादशी का व्रत पालन करेंगे, हर बार करेंगे। हर बार पता कर लिया एकादशी कब स्टार्ट हो रही है, उस अनुसार कर लिया।
पता चला कि रूल कुछ और था कि जब द्वादशी में एकादशी का अंश पड़ता है, तो द्वादशी को व्रत करना है। रूल पूरा पूरा पलट गया। हम लोग जो सोच रहे थे उसके ठीक विपरीत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, कोई नई बात नहीं है। जहाँ पे भी कृष्णा की बातें होंगी, अचिंतनीय तो होगा ही। नहीं तो कृष्णा की बात ही कहाँ हो रही है। जहाँ पे अचिंतनीय नहीं है, जहाँ पे आपकी समझ के परे नहीं हो रहा है, आपकी समझ अनुसार ही हो रहा है, वहाँ पे या तो आप आध्यात्मिक होंगे। हुँ। हाँ, देखिए ओके, शिवरात्रि परसों है क्या? परसों है क्या शिवरात्रि? हुँ, मेरे को नहीं मालूम है, सॉरी, मैं थोड़ा-सा अज्ञानी हूँ। हुँ, ओके, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। 8 को है और 9 को है, पता नहीं। यहाँ पे तो 8 और 9 कुछ दिखा रहा है। 8 को है, ओके, ठीक है। ऑन फ्राइडे, ओके, ठीक है, ठीक है। फ्राइडे परसों ही तो है। ओके, ठीक है। तो सेम रूल है क्या? एकादशी का पारण कीजिए, है ना? पारण करके प्रसादम पाइए। अब प्रसादम पाने के बाद क्या कीजिए? अगले दिन फिर से व्रत कीजिए। एकादशी का पारण करने के बाद एक बार प्रसादम अच्छे से पाइए। पारण के समय प्रसादम अच्छे से पाइए। उसके बाद नेक्स्ट डे व्रत कंटिन्यू कीजिए। व्रत ऐसे ही कंटिन्यू होता है। ठीक। कुछ लोग और कठोर करना चाहते हो, मतलब ठीक है, हमको और कठोर करना है, तो एक काम कीजिए, कल सफला कीजिए, ठीक है? सफला कीजिए और पारण अन्न का एक दाना ले लीजिएगा, ठीक है? एक दाना ले लीजिए और साथ में क्या ले लीजिए? साथ में एकादशी का नमक वाला जो सेंधा नमक वाला प्रसादम होता है, कुछ भी बना लीजिए, तो पा लीजिए, ठीक है? सुबह ही पा लिए, उसके बाद पूरे दिन में, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हैं। हुँ, तो चलिए, अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और ये स बाकी जो भी जिज्ञासाएँ हों क्लास के बाद 10 बजे। ओके, सरिता माता जी, हरे कृष्णा प्लीज़। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को भ्रमवश देह तथा भौतिक शक्तिमान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दिग्भ्रमित हो जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल है कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। तात्पर्य, यह मनुष्य जीवन अर्थद कहलाता है, क्योंकि आत्मा को परम सिद्धि प्राप्त करने में यह शरीर अत्यंत सहायक बन सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि यद्यपि यह शरीर क्षणिक है, तो भी यह हमें उच्चतम सिद्धि प्रदान कर सकता है। निम्न योनि से उच्च योनि के विकास क्रम में मनुष्य जीवन एक वरदान के समान है, किंतु माया इतनी प्रबल है कि हम मनुष्य जीवन के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद क्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो नश्वर है। ऐसे आकर्षण का प्रारंभिक कारण यह नश्वर देह है। जीवन की ऐसी भयानक स्थिति में मुक्ति का एक ही मार्ग है कि परमेश्वर के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन किया जाए और उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का श्रवण किया जाए। युष्मत कथामृत निवेशकः का अर्थ है जो आपकी कथाओं के अमृत का पान करने में लगे रहते हैं, कृष्ण के उपदेशों तथा
कार्यकलापों से संबंधित 2 विशेष ग्रंथ हैं। भगवद गीता कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है और श्रीमद् भागवत विशिष्ट रूप से कृष्ण एवं उनके भक्तों की कथाओं से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ कृष्ण श्री कृष्ण के विशेष वचनामृत है। जो कोई इन दोनों वैदिक ग्रंथों के प्रचार कार्य में लगा रहता है, उसके लिए माया द्वारा लादे गए बद्ध जीवन से छुटकारा पाना सरल है। मोह की बात यह है कि बद्ध जीव अपने आत्म स्वरूप को जानना नहीं चाहता। वह बाह्य शरीर शरीर में अधिक रुचि रखता है, जो एक चकाचौंध से अतिरिक्त कुछ नहीं है और एक निश्चित समय आते ही समाप्त हो जाएगा। जब जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे देहांतर करना पड़ेगा तो वो सारा वातावरण बदल जाएगा। तब वह पुनः माया के वश में भिन्न वातावरण में संतुष्ट हो जाएगा। यह माया का जादू आवरणात्मिका शक्ति कहलाता है, क्योंकि यह इतना प्रबल होता है कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। यदि वह मलमूत्र के बीच आंत में या उदर में एक कीड़े के रूप में भी उत्पन्न हो, तो भी वह प्रसन्न रहता है। यही माया का आवरण है, किंतु मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर है और यदि कोई इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो वह परम अभागा है। माया से बचने का एकमात्र उपाय है अपने को कृष्ण कथा में लगाए रखना। भगवान चैतन्य ने ऐसी विधि बताई है कि जिससे हर प्राणी बिना परिवर्तन के अपनी वर्तमान स्थिति में बना रह सकता है। बस उसे समुचित प्रामाणिक स्रोतों से कृष्ण से के संबंध में श्रवण करना होता है। भगवान चैतन्य ने हर एक को कृष्ण शब्द का प्रसार करने का उपदेश दिया। उनका उपदेश है, आप सभी गुरु बन जाए। आपका एकमात्र कार्य होगा कि आप जिससे भी मिले उससे कृष्ण के विषय में या उनके उपदेश के बारे में बातें करें। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसी उद्देश्य से कार्यशील है। हम किसी से यह नहीं कहते कि आने के पूर्व वह अपनी स्थिति बदल ले, अपितु हम हर एक को अपने पास बुलाते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई केवल कृष्ण का कीर्तन करता है और कृष्ण की कथा को सुनता है तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसे नया आलोक प्राप्त होगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद ने हम सभी पे बहुत कृपा की। उन्हीं के प्रयासों द्वारा ही हम लोग भक्ति में जीवित हैं। नहीं तो हमारा सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। ये पॉसिबल ही नहीं। प्लीज समझिए, आप में से बहुत लोग होंगे जो इस प्रकार का हृदय रखते होंगे। क्लास ज्वाइन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कार्य किया किया, नहीं किया नहीं किया। दो बातें। पहला, प्लीज नोट कीजिए, और कहीं पे भी गलत हूं तो कृपया, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आदेश दूं। ओके, आदेश देता हूं। मैं आदेश दे रहा हूं। सभी सभी को आदेश मिल रहा। आदेश, आदेश मतलब फॉलो करना ही है। कृपया करके सभी को सूचित कर दीजिए। क्या अगर मैं जो बोल रहा हूं उसमें थोड़ा सा भी कोई भिन्न विचार है, वैसा ही विचार है, तो वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इच्छा जता रहा हूं कि अगर आप बता दे तो अच्छा है। परंतु अगर उसके विरुद्ध है तो आदेश दे रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसके विरुद्ध। सभी ने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, सभी ने अपने हृदय में परिवर्तन देखा है, सभी ने अपनी स्थितियों में परिवर्तन देखा है ना? देखा है ना? सभी ने देखा है। सही है। नहीं है तो आदेश है आपको। जरूर बोलिए कि नहीं, मैंने तो अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखा। आपकी बातें सुनने के बाद हमारा जीवन कोई परिवर्तन नहीं। परंतु
कोई ऐसे हैं जिनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है? पूरा लाइफ नहीं बदला। मैं ये नहीं बोल रहा थोड़े से विचार बदले, पूरा जीवन ही नहीं बदल गया। परंतु आप लोग देखते हैं कि बहुत लोग दृढ़तापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यहीं पे लिखा हुआ है। यह माया की जादू अवरात्म अवरा आवरण आवरण आत्मिका शक्ति कहलाती है। आवरण, आवरण मतलब होता है कपड़ा, ढक देने वाली शक्ति। क्योंकि यह इतना प्रबल होता है कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थिति में भी संतुष्ट रहता है। झूठ नहीं बोल रहा, आज ही की स्थिति। और आज ही की नहीं, डिवोटी को ये बात बोली। एक कुत्ता, ये नॉर्मल है, आप लोग भी देखें। एक कुत्ता कभी नाली में गिर गया था, ठीक? उसके चारों पैर नाली में संधे हुए, और जहां जहां जा रहा वहां पे नाली का पानी एकदम काला काला। सफेद कुत्ता था, कोई इतना ब्राउन या ब्लैक नहीं था कि दिखाई ना दे। दिखाई साफ साफ दे रहा था, एकदम मतलब क्लियरली। और कुत्ता इस तरीके से खड़ा था कि वो बहुत प्रसन्न है, सैटिस्फाइड है, खुश। हमारी स्थिति भी इसी प्रकार। अगर माया के चादर में हम लत डूब जाते हैं, माया देवी हमको डुबा देती है, तो हम इसी प्रकार से सोचते हैं कोई बात नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, इसमें क्या बुरा हुआ। हम उसी में आनंद लेने लग जाते हैं। हम दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? हरे कृष्णा। क्यों नहीं दुखी होते हम लोग? जल्दी बताइए। यस, सब कोई लिखिए, बताइए, अनम्यूट कीजिए, क्यों दुखी नहीं होते? हरे कृष्णा। हम लोग दुखी क्यों नहीं होते? यस, क्यों दुखी नहीं होते? हम्म? हमको अगर दुख हो रहा है तो दुखी क्यों नहीं हो रहे? माया देवी क्या करती है? हाँ? झूठ को ही सत्य मान लेती है। बहुत बार मालूम है, ये रियलाइजेशन भी होता है, ये पता चल जाता है, ये पता चल जाता है कि ये झूठ है, परंतु हम फिर भी सोचते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अंग्रेजी में शब्द है अंडर द कारपेट, फ्रेज है इनफैक्ट, अंडर द कारपेट है। जब तक कालीन के नीचे दबा हुआ है ना, कौन देख रहा है उसको, कौन दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, कालीन के नीचे दबा दो, छुप गया। अंडर द कारपेट है ना, सब सही है। कालीन के नीचे है, कोई नहीं देख रहा, ऊपर से दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, हम भी झूठ बोले। ये माया की अवरात आवरण आत्मिका शक्ति है। देखिए, हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन भी एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। प्लीज सुनिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज सुनिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या? चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? हाँ? पढ़ते हैं। भगवान चैतन्य ने ऐसी विधि बताई है जिससे हर प्राणी बिना परिवर्तन के अपनी वर्तमान स्थिति में बना रह सकता है। करना क्या है? वो आगे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? बस उसे समुचित प्रामाणिक स्रोत से कृष्णा के संबंध में श्रवण करना है। श्रवण, श्रवण। सब कोई अपना कान खींचिए, तो थोड़ा सा कान खींचिए। श्रवण करना है। श्रवण। हमको क्या करना है? हम सभी को श्रवण करना है। श्रवण किए बिना हम इस आवरण आत्मिका शक्ति से बाहर नहीं आ सकते। श्रवण किए बिना।
सुने बिना। हमको सुनना है, प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। सुने बिना हम नहीं सुधर सकते। कुछ लोग सोचते होंगे, चलिए ठीक है, 1 दिन सुन लिए, 1 हफ्ते सुन लिए, 1 बार सुन लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, अब हम आवरण आत्मिका शक्ति से बाहर निकल जाएंगे। अब हम माया के संघर्षों से बाहर निकल जाएंगे। नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। प्लीज समझिए, साफ साफ आंखों के सामने लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। आप सोचेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला है कि हरे कृष्णा महामंत्र जपो, परंतु जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र जपना, हम उस हृदय से जपेंगे ही नहीं। हम कोई ना कोई नाम अपराध करेंगे। आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में भी यही पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो। व्रजवासी, कोई भी यज्ञ करके व्रजवासियों के हृदय को नहीं समझा जा सकता। कोई भी विधि से व्रजवासियों के हृदय को नहीं समझा जा सकता। अब व्रजवासी का अर्थ व्रज में वास करने वाला भी है, और व्रजवासी का अर्थ हमेशा कृष्णा के दिव्य लीलाओं में डूबे रहने वाला, हमेशा कृष्णा के लिए कार्य करने वाला। सेकंड वाला अर्थ श्रील प्रभुपाद के शब्द, याद होगा मैंने कोट करके भी दिखाया था क्लास में। तो इस बात को समझिए कि हमें प्रामाणिक स्रोतों से कृष्णा के बारे में श्रवण करना है। ये सुने बिना हम कभी सुधरने वाले नहीं। हम जिस स्थिति में, हम उसी स्थिति में रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे, है ना? तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या मिला है हम लोगों को? इनफैक्ट बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ ये श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियरली लिखे हैं। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? बाकी काम बाद में कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या? श्रवण कीजिए। तो कान पकड़ के अभी खिंचवाया था, श्रवण। बाकी चीजें बाद में है। श्रवण करेंगे तो हृदय परिवर्तित होगा। है? आप लोगों से पूछा कि सभी का हृदय परिवर्तित हुआ है, किसी का अगर ना हुआ हो तो उनको तो फिर से आदेश है, लिखिए, चैट में लिखिए, बोलिए कि नहीं, मेरा हृदय परिवर्तित नहीं। श्रवण करने से हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तो ये अप्रामाणिक स्त्रोत है। तब तो अपने आप को चैलेंज करने के लिए आपके सामने, ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, परंतु मैं अपने आप को चैलेंज करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। अगर किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं हो तो अप्रमाण, परंतु होता कैसा है? ये सब कुछ परिवर्तन देखने के बाद भी माया का जो आवरणात्मिका शक्ति है, माया की जो ढकने वाली शक्ति है, उसमें हम डूब करके उसी कुत्ते के भांति नाले में डूब करके सोच रहे हैं हम तो खुश हैं। माया में डूब करके हम सोच रहे हैं हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं, हमको क्या दुख है? माया देवी इसी प्रकार का कार्य है। बद्ध जगत से बाहर नहीं निकल रहे, उसी में संघर्ष कर रहे हैं, हम तो खुश हैं। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? कि हमको श्रवण करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? कि हमको बोलना है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हमारी वो स्थिति हो कि हम बोले, तो ठीक है आप मत बोलिए, परंतु आप उन स्रोतों से बुलवाइए, उन स्रोतों से बुलवाइए जो स्रोत आपको कृष्णा तक
ले जाने में आपकी मदद करे, दूसरों की मदद करे, हैं? डायरेक्टली अगर आप अपने मुख से नहीं बोलना चाहते, आप खुद अपने मुख से प्रचार कीजिए ना। देखिए, हम लोगों का सारा प्रॉब्लम यही है, सभी का, कि हम कृष्णा के प्रेम को स्वीकारते नहीं। दूसरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हम कृष्णा के प्रेम को स्वीकारेंगे तो कृष्णा लोग में होंगे, कृष्णा लोग में होंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, आनंद में रहेंगे, दुःख दुःख कहाँ? कोई भी किसी भी प्रकार का दुःख किस बात का? 3 साल का बच्चा अपने पिता के संरक्षण में रहेगा तो दुःख किस बात का होगा? कोई दुःख है? बच्चा बहुत प्रसन्न रहेगा। प्रॉब्लम यही होता है और हमारे परमपिता के पास तो सब कुछ है। प्रॉब्लम यही होता है कि माया की ये शक्ति है ना, उसके कारण लोग स्वीकारते नहीं, लोग स्वीकारते नहीं, लोग मूर्ख बन जाते हैं। अब देखिए स्थिति कैसी है? कृष्णा अपने आप को प्रकट करेंगे। सपोज कीजिए कृष्णा आपके सामने खड़े, कृष्ण आपके सामने खड़े, आप कृष्णा को देख रहे हैं, परंतु माया देवी क्या बुलवाएंगी? माया देवी बोलेंगी, हैं? कृष्णा सामने खड़े हैं, अरे तुमको पता है तुम कितना अनक्वालिफाइड है, कितना बड़ा मूर्ख है, कितने अच्छे अच्छे भक्त बैठे हुए हैं और कृष्णा आपके लिए आ जाएंगे, हैं? कृष्णा आपके लिए आएंगे, कृष्णा आपके सामने प्रकट होंगे क्या? सभी को छोड़ करके कृष्णा सबसे पहले आपके लिए आ जाएंगे? माया देवी इस प्रकार का अनुभव करेंगे। कृष्णा आपके सामने खड़े हों, कृष्णा अगर आपसे कुछ मांग रहे हैं, कृष्णा वो फल वाली से फल मांग रहे हैं, घर से अन्न लेकर के आ रहे हैं मुट्ठी में बांध करके, तो कुछ दाने लेकर के आए और फल वाली से फल मांग रहे हैं, फल दे दो मां। अगर फल वाली इस प्रकार का हृदय रखे, पूरे दुनिया में इतने कोई लोग हैं, इतने शुद्ध शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे। मैं तो फल बेच रही हूं, कृष्ण मेरी भक्ति से प्रसन्न होंगे। अगर कोई ऐसा सोचे तो भक्ति कैसे करे? इस कली काल में सब कोई ऐसा ही सोचने वाला, सब कोई ऐसे ही सोचेंगे एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए और सच में फ्रेम करके लगा दीजिए। एक को छोड़ करके सबको इसी प्रकार से सोचेंगे। माया की आवरण आत्मिका शक्ति आएगी और आपको बोलेगी आप भक्ति कर रहे हो, आपके भक्ति करने से कुछ होगा है? आप सोचते पूरी दुनिया बदल देंगे, आप सोचते हो आपके प्रचार करने से कोई लाभ हो जाएगा। सबको यही सोचेगा, अंत तो गत्वा सबको यही सोचेगा एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। कौन? कौन है वो एक? एक जो होगा वो बच जाएगा, बाकी आवरणात्मिका शक्ति में सब डूब जाएंगे। माया देवी अगर टेस्ट ना ले, डिफिकल्ट टेस्ट ना ले, तब तो ठीक है, परंतु किसी दिन अगर डिफिकल्ट टेस्ट ले लिया माया देवी ने, सब कोई बर्बाद हो जाएगा, बस एक बच जाएगा, एक गारंटी से बचेगा। एक कौन? हजारों में से एक है वो एक, यहाँ पे एक गारंटी से बच रहा है। कौन है वो? हाँ, परफेक्ट।
जिसको गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास, जिसको गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास, जो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। शबरी डेली डेली बेर चख करके रखती थी कृष्णा के लिए, राम जी की डेली रखती थी, क्योंकि उनको विश्वास था मेरे गुरु गलत नहीं, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मेरे से चला नहीं जा रहा है, परंतु अगर गुरु ने बोला है ना तो राम राम आए, ये गलत नहीं हो सकता। गुरु ने बोला है तो, और उनको कोई डिगा नहीं सकता, उनको कौन हिलाए, उनको कौन, कोई नहीं हरा सकता। भक्ति के पद से कौन हटाएगा? माया देवी की आने दीजिए आवरण आत्मिका शक्ति, ढक देने दीजिए सब कोई को। अगर कोई गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण श्रद्धा है गुरु, उसको कौन हिलाएगा? कौन डगमगा सकता है उनको? उनके पास किसी भी माया देवी की कोई भी जाल में वो नहीं फंसे, वो नहीं फंसे। इनफैक्ट माया देवी उसका टेस्ट भी नहीं लेगी। जो गुरु के प्रति दृढ़ समर्पित हो, माया देवी उसका टेस्ट नहीं लेंगे। उसको संघर्ष होगा, इन इन पर्सनालिटी को, इन दिव्य आत्मा को, दिव्य चेतना को भी संघर्ष होगा, परंतु वो संघर्ष होगा कि बाकी लोग भगवत धाम कैसे, उनको अपने भगवत धाम जाने का भी कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई संघर्ष एक्चुअली में उनको कोई मतलब भी नहीं होगा। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। अगर भगवान की ये इच्छा है कि मेरे को कष्ट मिले तो कष्ट मिले। जो गुरु के प्रति समर्पित है, उनका अहित हो कैसे सकता? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, है ना? अच्छा, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, वो भी यहीं पे लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? आपका एकमात्र कार्य होगा, एकमात्र, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आपका एकमात्र कार्य होगा कि आप जिससे भी मिले उसे कृष्ण के विषय में या उनके उपदेश के बारे में बात करें। इंस्ट्रक्शन क्या है? कृष्णा विषयक नाम का प्रचार करें, कृष्णा के बारे में प्रचार करें। हम सभी को कार्य क्या करना चाहिए? कार्य ऐसा करें कि कृष्णा की कही गई बातों का प्रचार करें। कृष्णा जो कहते हैं वो कीजिए। कृष्णा ने बोला गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण की रक्षा करनी, तो आप कीजिए। परंतु इसको समझ करके मुझे बड़ा कष्ट है, बहुत लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि गायों की रक्षा करना भगवान की सेवा करना है। नहीं, प्लीज समझिए, वापस से वही जो अभी अभी जो पॉइंट बात हुई, वही वापस से हम किसके लिए कर रहे हैं? जैसे वहां पे हम गुरु की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, यहां पे हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। अगर कृष्णा गायों के बारे में न बताएं तो हमको गाय मालूम है कि गाय बहुत विशिष्ट प्राणी है? क्या हमको पता है? क्या हमारी चेतना इस प्रकार की होगी क्या? बहुत लोग हैं,
गायों के बारे में महिमा करते हैं। देखिए, अगर कोई बहुत ही उच्च व्यक्तित्व दिखे, तो उनको ये समझ लीजिए एक्सटेसी भाव में बोल एक्सटेसी भाव में बहुत ऊँची-ऊँची बातें बोल देते हैं जिसका रिलेवेंस नहीं होता। परंतु इस बात को समझिए, कि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। हम किस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अगर जो गुरु कहे वही करेंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर हम कृष्णा के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, तो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि गायों की सेवा भी करना, कृष्णा की सेवा करना। क्योंकि कृष्णा कहते हैं कि गायों की सेवा करना, उसलिए हम गायों की सेवा करेंगे। क्योंकि कृष्णा गायों की सेवा करते थे, उसलिए हम गायों की सेवा करेंगे। हम गायों को कृष्णा से स्वतंत्र होकर के नहीं जानते, नहीं जानते। हम किसी को भी कृष्णा से स्वतंत्र होकर के नहीं जानते। हम किसी को भी श्रीमती राधा रानी से स्वतंत्र होकर के नहीं जानते। हाईएस्ट लेवल पे हम कृष्णा को भी राधा रानी महारानी से स्वतंत्र होकर के नहीं जानते। अगर राधा रानी महारानी कृष्णा से वो प्रेम प्रसार न करे, तो हमको क्या मालूम है प्रेम क्या होता है। और प्रेम नहीं पता तो कृष्णा से प्रेम संबंध कैसे पुनर्स्थापित करेंगे। होंगे कृष्णा भगवान होंगे, हमको मालूम ही नहीं है कृष्णा से प्रेम संबंध कैसे स्थापित करना, हम कृष्णा के पास कैसे जाएंगे। बाय द वे, किन्हीं ने मुझे ये बताया, इस बात को समझिए, मेरा खुद का नाम भी श्री राम है। बहुत लोगों को कृष्णा के बहुत सारे रूपों में बहुत अच्छा लगता है। मुझे बाल काल से प्रभु श्री राम के प्रति बहुत, इनफैक्ट आप समझ सकते हैं रामनवमी को जन्म होना, ठीक, तो अब हमारा हृदय उस प्रकार से धड़कता है। परंतु इस बात को समझिए, ठीक है, ये सारी बातें सही है, परंतु हमारा परम लक्ष्य क्या है? हमारा परम लक्ष्य है कि भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना। अगर प्रेम पुनर्जागृत करना है, तो कौन से रूप में प्रेम पुनर्जागृत कीजिए? प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहना। और हम मर्यादाओं को मान ही नहीं सकते। कोई एक व्यक्ति है जो बोले कि पूर्ण रूप से मर्यादा को मान पाएंगे। अगर मर्यादाओं को मानना का अर्थ आप समझ रहे हैं, हम कोई गलती नहीं करेंगे। भक्ति पथ पे चलते हुए हम किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। ऐसा कर पाना संभव है? कर पाना संभव है? अगर ये संभव है, तब तो हम वो रूप की बारे में चिंतन करें, श्रवण करें, उसके बारे में आगे हम चलते रहें, तो वो पथ एकदम सही है। ठीक इसी प्रकार से और भी जितने भी कृष्णा के विस्तारित रूप हम नहीं कर पाएंगे। उसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कृष्णा से ज्यादा कृपालु कोई नहीं। कृष्णा के विभिन्न विस्तार भी नहीं। हम किन्हीं से प्रेम पुनर्जागृत नहीं कर पाएंगे। तो समझिए, क्या पहले बोला गया है, पहले आप कृष्णा से, पहले हम सबको ये आकर्षित होते हैं, उसके बाद क्या करना है? प्रेम जागृत करना है।
और उसके बाद क्या करना है? प्रेम प्रसार करना। हम जब कृष्णा की कही गई बातों को प्रसार करें, तो प्रेम प्रसार करना है। हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करें, कोई भी कृष्णा का प्रसाद चखे, एक्चुअली मालूम है क्या? कृष्णा का प्रसाद उन्हीं को मिलना चाहिए जो क्वालिफाइड है, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने अनक्वालिफाइड लोगों को भी कृष्णा प्रसाद दिया, वितरित किया खुले हाथों से। आज भी आप कहीं पे भी टेंपल में जाएं, आज भी कोई टेंपल में ही आज बात कर रहा है, ये जो प्रसाद पाने आई है ना, ये जब मौका मिला है तो नाम बोल लेते, ये डिविएटेड पंथ वाली फॉलोअर है। डिविएटेड पंथ समझ गए ना? आप लोग बोल सकते हैं नाम, मैं थोड़ी ना बोलूंगा। ये प्रसाद पाने यहाँ पे आई है, तो एक माता जी प्रसाद पाने, तो ठीक है, बहुत लोग टेंपल विजिट करने भी आते हैं, ठीक है, कोई कोई भी हो, हम मना करेंगे क्या? हम किसी के लिए मना करेंगे? भगवान का द्वार सभी के लिए खुला हुआ है। तो चाहे कोई कितना भी डिविएशन से भी जा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी गलती स्वीकार कर ले कि हमको भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना है, उस रास्ते चलने लग जाए, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर ले, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। कोई भी शुद्ध हो सकता है, और हमको सभी की मदद करनी, खुले हाथों से सबकी मदद कीजिए। इंस्ट्रक्शन मिला हुआ साफ साफ। सबसे अच्छा तो क्या होगा कि हम कृष्णा के बारे में ही प्रचार करें, और नहीं भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, तो उन लोगों का साथ देना चाहिए, उन लोगों को स्ट्रांग बनाना चाहिए जो इस कार्य में लगे, जो भी कहीं भी लगे। डायरेक्टली आपने नहीं किया, इनडायरेक्टली किया, बिल्कुल किया। आप समझिए, एक्चुअली में हम हर स्थिति में हम गुरु के शब्दों का प्रचार ही तो कर सकते हैं। हम और कुछ भी कर सकते हैं क्या? हमारे पास कोई और सेकंड तरीका भी होता है? नहीं, कोई और तरीका नहीं होता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने हम सभी पे ये कृपा की है। कृपया इस कृपा को स्वीकार करके उन कार्यों पे आगे बढ़े। सबसे आसान तरीका होता है क्या? प्रभु जी आपने बहुत अच्छा किया, वाह 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 वाह। हो गया मेरा काम, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आज बहुत अच्छा लगा। ये सबसे आसान, सबसे आसान होता है कि कोई योद्धा, योद्धा जो होता है ना, योद्धा, क्षत्रिय योद्धा, युद्ध करने वाला, उसकी महिमा गा दीजिए। अरे कितने महिमावान है, वाह क्या शौर्य आप में, कितने दृढ़ता से आपने लड़ाई की और सब कोई को हरा दिया। मुश्किल क्या होता है? उस युद्ध में आप चले जाइए, महिमा गाना बड़ा आसान है ना? तो बस ये बोलना कि ये सब अच्छा हो रहा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये सब गलत है। बस इतना नहीं करना है, हमको ये भी करना है। पहले तो असलियत ये है कि लोग स्वीकारते नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लोग स्वीकारेंगे, बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे, लोग नहीं स्वीकारेंगे। परंतु उसके ऊपर की बात ये है
कि जब लोग स्वीकार करने लग भी जाएँ, लोग स्वीकार करने लग भी जाएँ, पहले तो स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार कर भी लेंगे, तो फिर कार्य नहीं करेंगे। और यही है माया की आवरण आत्मिका शक्ति। लोगों को बहुत अच्छे से मूर्ख बना देती है, बहुत अच्छे से मूर्ख। ठीक है, ठीक है। बैटरी लो हो जाए तो ठीक है, चार्ज कर लेंगे। हम लोगों की बैटरी लो नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति में बैटरी लो हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, है ना? यही एक्चुअली में यही सार है। हम लोगों की बैटरी लो नहीं होनी चाहिए। साफ-साफ लिखा हुआ है कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, बाकी शास्त्रों के बारे में नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो इन दोनों वैदिक ग्रंथों के प्रचार कार्य में लगा रहता है, उसके लिए माया द्वारा लादे गए बद्ध जीवन से छुटकारा पाना आसान है, सरल है। अगर आप किसी का भला चाहते हैं, तो जो ये 2 ग्रंथों का प्रचार कर रहा है, उस प्रचार कार्य में साथ दें। बहुत लोगों का नेटवर्क भी खराब हुआ, इनफैक्ट मेरा भी खराब, पर अब ठीक है, जो भी। बीच में मेरे को पता चल गया था, नहीं तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि क्लास लेना भी मुश्किल हो जाता। पर ठीक है, मैंने सेटिंग ठीक कर ली तो हो गया। ओके, कमिंग बैक। तो अगर आप सच में चाहते हैं ना भला होए, अच्छा होए, तो आपको इन 2 ग्रंथों का प्रचार कार्य में जो लगा हुआ है, उसके लिए मदद कीजिए। यही आप भला कर सकते हैं। क्योंकि बद्ध जीवन से छुटकारा पाना, इस कार्य में लोग सफल हो सकते हैं ना? ठीक है। ये हम लोग कल पढ़ रहे थे। कल क्या पढ़ रहे थे? कल समझ रहे थे, कल स्पेशल सेशन कल था, संडे को कल ही था, कल था। कल भी एक स्पेशल सेशन था। कल यही जान रहे थे, क्या? कि संबंध, है ना? अपने भौतिक संबंध। किंतु माया इतनी प्रबल है कि मनुष्य जीवन में इस महान वरदान को, कौन-सा महान वरदान? कि हम, ये मनुष्य जीवन मिला है, ओके। इस महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद क्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़ के अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। अगर हम किसी को बोले कि आपका जीवन किस लिए है, तो बोलेगा, आप सोच के देखिए, आपने हर बार, बाकियों को छोड़िए, वो क्वेश्चन को भी छोड़िए जो अभी बोला, आपने हर बार जब भी पूछा गया हो, आपका जवाब यही रहा हो। कभी भी आप बहुत सारा श्रम किए हो, मेहनत की हो, कभी भी आपने बहुत कार्य किया हो, कभी आपको असफलता मिली हो, कभी आपको बहुत लाभ हुआ हो, आपका हर बार एक ही जवाब रहा, हम ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, ये सब अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, ये सब अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, ये सब अपने पिता के लिए कर रहे हैं। हर बार जवाब यही था ना, ये सब हमने किसके लिए किया है? अपने परिवार के लिए किया, बोला है, हर बार बोला है कि नहीं बोला? जब तक भक्ति में नहीं लगे हुए थे, हाँ? कभी भी हमको बहुत सारा कुछ करना पड़ गया, है? तो हम क्या बोलते हैं? माताएं भी, जो गृहिणियां हैं, बोलती हमको अपने लिए नहीं पड़ा है, हमारा तो जैसे तैसे जो होगा चल जाएगा।
हमको अपना कोई टेंशन नहीं। हमने हर बार किया तो परिवार के लिए। हुँ? हम हर बार पढ़ाई किए तो परिवार के लिए किए। हमारे माता ने बोला, पिता ने बोला, उसके लिए किया, इसके लिए किया। देखिए, आप समझिए, आप निचले संबंधों को तो जान रहे हैं। निचले धर्म को तो हो सकता है पहचान हो सकता है नहीं भी पहचान, हो सकता है गलत जान, परंतु निचले धर्म को तो हो सकता है पहचान। परंतु जो उससे ऊपर का धर्म है, क्या उस धर्म को पहचाना? क्या उस धर्म को पहचाना? क्या उस लक्ष्य को पहचाना? माया की आवरणात्मिका शक्ति इसी प्रकार की है कि वो धर्म को पहचानने भी नहीं। गुरु जो होते हैं, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं। हाँ, कष्ट ज़रूर होता है, परंतु कोई परवाह नहीं। पूरी दुनिया क्या बोल रही है, बोलने दीजिए। भीड़ क्या बोल रही है, बोलने दीजिए। लोग गलत रास्ते चल रहे हैं, चलने दीजिए। परंतु हम तो पूर्ण प्रयास करेंगे। हम तो शुद्ध भक्ति का पूर्ण प्रयास करेंगे। हम तो पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम सफल हों, और ना ही हम सफल हों, हम सभी की मदद करेंगे कि वो सफल हो जाए। मालूम है लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मालूम है, अधिकाधिक लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या करें? अधिकाधिक लोग माया के वश में ही रहेंगे, माया के प्रभाव में ही रहेंगे, तो क्या करें? क्षणिक सुख ही उनको चाहिए। उनको जीवन का लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करें? क्या करें? हुँ? प्लीज़ समझिए, यहाँ पे भी प्रहलाद महाराज ने जो बोला, वो भी यही बात है। उच्च, हायर प्रिंसिपल, हायर प्रिंसिपल, उच्च ऊँचे लक्ष्य। प्रहलाद महाराज ने कहा कि यद्यपि यह शरीर क्षणिक है, शरीर थोड़ी देर का है, तो भी यह हमें उच्चतम सिद्धि प्रदान कर सकता है। उच्चतम सिद्धि, कब? जब उच्चतम लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे तब उच्चतम सिद्धि मिलेगी। हायर प्रिंसिपल, ऊंचे सिद्धांत होंगे तो उच्चतम लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे, और उच्चतम लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे तो उच्चतम सिद्धि मिलेगी। बहुत अमेजिंग बात, बहुत बहुत अमेजिंग बात है ना? लोग माया के क्षणिक सुख और दुख, जब यहाँ पे सुख लिखा है तो सुख और दुख दोनों है, दोनों है। सुख का अभाव दुख है। माया के सुख और दुख के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सपोज कीजिए माया देवी क्या करे, माया देवी आपको फील कराए, अनुभव कराए, ये तो दुख है, तो आप क्या कार्य कीजिएगा? आप ऐसा कार्य कीजिएगा कि आप सुख के लिए कार्य कीजिए। माया देवी दूसरी तरफ क्या अनुभव कराएंगे? तो सुख है, आप उसी के लिए कार्य कीजिएगा। और चाहिए, और चाहिए। तो ये जो माया देवी क्षणिक सुख या दुख का अनुभव कराती है, तो उसके प्रति आकर्षित हो। ये बद्ध जीव जीव इसी प्रकार से। कृष्णा के कार्यकलाप, कृष्णा के पास टाइम, हम श्रवण करके, वापस से क्या? श्रवण करके। हम्म? श्रवण करेंगे तभी कीर्तन करेंगे। कीर्तन उससे पहले नहीं कर सकते। सुना ही नहीं है तो गाएंगे क्या?
हमारा हृदय परिवर्तित हुआ ही नहीं है, तो हम गाएंगे क्या, बोलेंगे क्या, किसके बारे में बोलेंगे? हमारे हृदय में कृष्णा वास करते हैं, तभी तो हम कृष्णा के बारे में बोलेंगे। तो कृष्णा के दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल होते हैं कि उनका श्रवण और कीर्तन करके, सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण। मोह के द्वार से, मोह से उद्धार हो सकता है, मोह से। इसीलिए कल भी बात कर रहे थे क्या, कि हम लोगों को धीरे 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 गंदगियों से, मलिनता से निकलना, धीरे धीरे शुद्ध प्रयास कीजिए, निकल जाइए। कोशिश, एफर्ट, एफर्ट शुद्ध की। हरे कृष्ण। आई नो बहुत लोगों की नेटवर्क भी खराब है, और बहुत लोगों को शुद्ध सुनने का हृदय भी नहीं। बहुत लोग झूठे अवस्था में रहना चाहते हैं। आप में से 2-3 डिवोटी को आज मैंने वॉइस मैसेज भेजी। हर बार मेरा यही है, अगर आप मेरे वॉइस मैसेज को देखिएगा, सुनिएगा, क्लास को सुनिएगा, दोनों में सेम बात, कोई दूसरी बात नहीं। वहां पे भी यही बात बोली, हमको असत संग से निकलना, गलत संग से निकलना, और सही में अपने आप को लगा देना। ठीक है? लोग स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं कि वो गलत में। वो कुत्ता स्वीकारना ही नहीं चाहता था कि वो नाली में, नहीं स्वीकारना चाहता। ये तो उसका प्लेग्राउंड है, हम तो खेलते हैं यहाँ। समझिए इस बात, निकलना पड़ेगा, गंदगी से निकलना। नहीं तो हम हर जगह मलिनता फैलाते रहेंगे और सोचेंगे इसमें बुरा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप सबको इनमें जागृति अधिक से अधिक आ रही हो, लक्ष्य के लिए और दृढ़ निश्चित निश्चय करके कार्य कर रहे हैं। चलिए, हरे कृष्ण। गगन प्रभु जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 सभी भक्तों की जय जय कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, लिसन करने के लिए, क्लास सुनने के लिए।
किन्हीं को किसी कोई भी बात, किसी प्रकार की जिज्ञासा है, कहीं से भी कुछ पूछना हो, जानना हो, बताना हो, बता सकते हैं। कुछ भी पूछना प्लीज़ पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछना। हुँ, कुछ भी पूछना, कुछ भी बोलना, आप प्लीज़ बोलिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यस, कुछ भी पूछना। हुँ, बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं, आई नो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कष्ट भी है, आई नो। देखिए, क्या ओके शिवरात्रि का फास्ट रख सकते हैं? सो कन्फ्यूज़्ड। देखिए माता जी, अगर रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर रखना है तो बस एक कारण से कि शिव जी परम वैष्णव। हमको शिव जी से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर शिव जी की इच्छा करे, है ना? तो हम उनकी कृपा चाहते हैं, हम उनकी बस कृपा चाहते हैं। क्या? क्या कृपा? कि हम भगवत भक्ति करें, हम कृष्णा की भक्ति करें, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। हम हर सांस में यही चाहते हैं कि हमको कृष्णा मिले, हम शिव जी से भी हमको कृष्णा मिले। अगर व्रत करना है तो बस यही कारण से, बाकी कोई भी कारण से व्रत करो, अपने परिवार के लिए, शिव जी को खुश करना है, सब। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं, अगर शिव जी मेरे इस बात से प्रसन्न हो जाए, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हमको कृष्णा भक्ति मिले। मैं उनको नहीं चाहिए, आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास बहुत सारा कुछ है देने को, मेरे को बस इतना ही चाहिए कि हमें कृष्णा भक्ति। दूसरा कोई भी हृदय से आप कर रहे हैं, एकदम गलत कर। एक्चुअली में स्थिति यही है कि हम लोग भिन्न-भिन्न कारणों से कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। ये भी गलत है कि परिवार वाले बोल रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, ये भी गलत है। जब तक एकमात्र इच्छा ये नहीं है, तो फिर जो भी कर रहा है सब एकदम क्लियरली सुनिए, बिना किसी राग लपेटे। मेरे को कोई ये लिख करके दे दीजिएगा, मैं अपना मैसेज भेज दूँगा ग्रुप में। एग्ज़ैक्टली यही, कि अगर शिव जी को कृष्णा के शुद्ध भक्त के रूप में देख रहे हैं और उनसे बस एक प्रार्थना कि अगर आपकी इच्छा हो, आपकी प्रसन्नता हो, तो हमें कृष्णा भक्ति में लगाएँ। तब तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। गारंटी से गलत है, अगर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो आप कृष्णा का समूह दुआ भी नहीं मानते। लोग करेंगे, अधिकाधिक लोग करेंगे। और व्रत कैसे करना है? व्रत ऐसे ही करना है कि पहले एकादशी का व्रत करना है। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में फास्ट ब्रेक करना है। फास्ट ब्रेक करने का टाइम उस समय पाइए। बहुत ज़्यादा भी अन्न पा सकते हैं, नहीं तो अन्न का एक दाना और एकादशी का जो जो भी प्रसादम है, पाइए अच्छे से। अगले दिन का फास्ट कंटिन्यू करना है तो ऐसे ही, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ, हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। व्रत से भी रिलेटेड बात है तो पूछ लीजिए। अच्छा पूछा माता जी। क्लास से पहले ही पूछा था, प्रज्ञा माता जी ने पूछा। अच्छा किया। है ना?
जिज्ञासा रहे पूछिए। देखिए एक बात एक बात समझिए, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हम लोगों में करने का कुछ भी कार्य करने का कोई सामर्थ्य नहीं। हमारी कोई हैसियत नहीं है। परंतु अगर हम शुद्ध हृदय से कृष्णा के लिए कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो कृष्णा मना नहीं, कृष्णा मना नहीं। अगर शुद्ध हृदय से प्रयास करेंगे तो कृष्णा स्वीकार करेंगे। प्रेम और भक्ति होनी चाहिए, शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति से कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। कृष्णा कभी अस्वीकार नहीं। Yes. यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना। कल एकादशी है, अभी सब कोई अच्छे से प्रसादम पा लें। सुबह भी पाना हो तो जल्दी उठ करके, बहुत ही जल्दी उठ करके पा लीजिए। उसके बाद व्रत अच्छे से कीजिए और नाम जप अच्छे से कीजिए। यस। कोई जिज्ञासा रहे तो पूछ लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि जल्दी पूछ लीजिए। पता चला कि कल सुबह पूछ रहे हैं कि व्रत करना है नहीं करना है, तो फिर वो लेट हो जाता है। कभी-कभी 2-3 घंटे, 4 घंटे बाद भी रिप्लाई करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करने का, कभी-कभी ठीक है। तो सभी की जिज्ञासाएँ का आंसर कर दिया। स्क्रीन शेयर करते हैं, 1 से 2 मिनट दीजिए। अगर फिर भी किन्हीं की जिज्ञासा है तो बिल्कुल पूछिए, चाहता हूँ आप पूछिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके। सभी स्मॉल साबूदाना ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मेरे हृदय से चलना है, मेरी ही इच्छा से चलना है, साबूदाना को उठा करके, साबूदाना नॉनवेज के समान है, ठीक है? साबूदाना जो भी घर में है ना, उठा करके किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए जब भूल जाना। ऐसा मत कीजिए कि सीधा फेंक दिया, किसी को दे दीजिए और गलती से भी साबूदाना का कुछ भी मत लाइए। मेरे लिए नॉनवेज के समान। लॉजिक क्या है मैं बता दूँगा, आपको देखना है, समझना है, जानना है, वीडियो चाहिए और कुछ चाहिए तो इनफैक्ट मेरे को लगता है आप अगर मैं आपको सीधा-सीधा बता दूँ, प्लीज़ वो सब करके टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप शायद हुँ, बस अगर आप साबूदाना नॉन-वेज लिख दीजिएगा, तो आपको कुछ वीडियोज़ आ जाएँगे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को भी मत दीजिए, नॉन-वेज किसी को खिलाइएगा क्या? ठीक है। प्लीज़ थोड़ा ऊँचा मापदंड रख सकते हैं ना, क्यों हर चीज़ हम नीचे वाले मापदंड पे चलें? कोई अगर मानता भी है, तो भी हमको ऊँचे वाले मापदंड पे रखने का प्रयास करना है। कोई नहीं मानता, हम तो कोशिश करेंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि ऊँचे वाले मापदंड पे। यस। अब प्लीज़ माताजी मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं बार-बार इसीलिए बोलता हूँ। देखिए,
मैं टेम्पल के अगेंस्ट कभी नहीं बोलना चाहता। आप समझ रहे हैं? मैं टेम्पल के अगेंस्ट कभी नहीं बोलना चाहता। इनफैक्ट मैं कभी-कभी ऐसा लग जाता है कि मैं टेम्पल के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं टेम्पल के अगेंस्ट कभी नहीं बोलूँगा। आप लिख के रखिए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो गड़बड़ है। मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। नहीं है। ठीक है? लोग कर रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन है, पॉपुलैरिटी है, ठीक है। वो क्या समझाए, क्या बताए? देखिए, समझाया या बताया उनको जा सकता है जो लोअर लेवल पे, है ना? ठीक है। आप बोल दीजिए हम हायर हायर प्रिंसिपल का फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं, पर हम तो नहीं करेंगे। हम हमारे लिए साबूदाना नहीं है, हम साबूदाना को नहीं पाएँगे, है ना? मैं कोशिश कर रही हूँ इस सिद्धांत का पालन करने इस सिद्धांत का पालन करने। कोई बोले कि आप इस्कॉन से भी ऊँचे हो गए या फिर कुछ भी। बोलिए हमको वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्चुअली में आप समझिए, मैंने जिज्ञासा भी की हुई है, परंतु कुछ भी ऐसा जवाब नहीं आया, नहीं है। ठीक है ना, उनको अपना करने दीजिए। मेरे को उनके अगेंस्ट नहीं जाना और उनके अगेंस्ट जाकर के कोई मेरा ध्येय भी नहीं है, मेरा लक्ष्य भी नहीं है। वो वही कार्य कर रहे हैं। मूलतः मूलतः वो वही कार्य कर रहे हैं जो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने बोला। अब बाकी जो और बातें हैं, वो सब बातों का ठीक है, हम अगर अच्छे से कर सकते तो हम क्यों नहीं करें? अगर सपोज़ कीजिए आपके घर में 5 प्रसादम बना है और 5 प्रसादम में कुछ भी खराब नहीं है, हैं? तो आप वही ना पाएँगे जो आपके लिए अच्छा होगा। आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप नहीं पाते, यही ना होता है। ज़रूरी थोड़ी ना 5 चीज़ बनी है तो हम पाँचों चीज़ पाएँगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि सब कुछ दे रहे हैं तो हम सब कुछ पाएँगे। हम वो पाएँगे जो हमारे लिए अच्छा है, अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं पाएँगे। हमको नहीं अच्छा लगता, हमको समझ में आता है कि गड़बड़ है, ठीक है? तो जो भी ये तो एक एक बात है, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। जो भी प्रिंसिपल हायर प्रिंसिपल और देखिए बहुत बार कोई ऐसा भी बोल सकता है, हैं? आपको एक एक बहुत बड़ा बात बताऊँ, कोई ऐसा ही बोल सकता है। देखिए, श्रील प्रभुपाद के समय तो ये होता था, हैं? मेरे को इसके लिए इस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए मेरे को कुछ पता नहीं है। परंतु कोई ऐसा बोल सकता है कि श्रील प्रभुपाद के टाइम तो ऐसा होता था। देखिए, श्रील प्रभुपाद हर वो चीज़ किए जो प्रकट स्थितियों में बेस्ट बेस्ट प्रकट स्थितियों में। परंतु बहुत सारी चीज़ें जो अप्रकट हों, भौतिक मलिनता से श्रील प्रभुपाद थोड़ी ना 2-4 हो रहे थे। भौतिक मलिनता कितनी-कितनी है श्रील प्रभुपाद इससे थोड़ी ना अपना जीवन को चैनलाइज़ कर रहे थे। और भी भौतिक मलिनता रही होगी, जो श्रील प्रभुपाद नहीं देखे। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? ठीक है? तो अगर कोई ऐसा ही बोले तब भी ठीक है ना, उनको बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आई होप सभी के लिए क्लियर और किन्हीं को साबूदाना पे कोई इश्यू है तो मेरे से पूछ लीजिए। मैं दिखा दूँगा कोई कैसे होता है। हमको हमारे लिए नहीं है, जिसको पाना है, जिसको करना है वो करे, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए वो नॉन-वेज के समान है, हम नहीं पाएँगे। एकादशी तो दूर की बात है, हमको वो पाना ही नहीं। अभी सपोज़ कीजिए साबूदाना पाने के चक्कर में आपका व्रत ही गड़बड़ हो गया, व्रत क्या और नॉन-वेज पाएँगे तो आपका पूरा जागृति गड़बड़
हमको नहीं। ठीक है, अगर मैं ये भी बोल दिया, हो सकता है आज के दिन में प्रोसेस बदल गया, कोई और दूसरा तरीके से बन रहा हो। हमको क्या ज़रूरत है भाई? अगर गलती से कोई गलत क्वालिटी आ गया, गलती से कोई गड़बड़ कर दिया, बीच में कोई चोरी कर लिया, कोई बीच में कुछ गड़बड़ डाल दिया, क्या कीजिएगा? हम अपनी जागृति बदल दें उसके लिए, अपनी चेतना को दूषित कर दें। चाहे कोई भी स्थिति हो, हमको ये सब काम में नहीं लगता, कोई काम में नहीं। सीधा जीव हत्या हो। अगर गड़बड़ पकड़े गए तो सीधा जीव हत्या होगा, जीव हत्या का अपराध लगेगा। हमको नहीं लगना है, हमको नहीं चाहिए सब। आई होप क्लैरिटी हो सभी। आई स्टैंड वेरी स्ट्रांगली फॉर व्हाट आई से। जो मैं बोलता हूँ उसके लिए बहुत प्रामाणिकता से स्ट्रांगली खड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है बोल दिया बस ऐसे ही। मेरे लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लैरिटी है। किन्हीं को और को किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हम्म? और जहां पे भी जाएं, सपोज कीजिए प्रसादम कहीं पे मिल रहा, जहां पे भी जाएं साफ साफ पूछिए, इसमें साबूदाना नहीं है ना? एकादशी का प्रसादम ले रहे हैं, लेने से पहले ही पूछ लीजिए इसमें साबूदाना नहीं है ना? साबूदाना है तो मेरे को चाहिए ही नहीं। देखिए, ऐसा भी आप सोच सकते हैं, इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे पहले के ज़माने में लोग हुआ करते थे ना, तो वो इस प्रकार से त्याग करते थे। एक चीज़ खाना छोड़ देते थे। कोई-कोई चीज़ होती है, उसको खाना छोड़ दिया। ना कहीं तीर्थ में गए, तो वहाँ पे प्रण ले लेते थे कि अब एक चीज़ ये खाना छोड़ देंगे, अब जीवन में ये छोड़ देंगे, आज के बाद से ये नहीं खाएँगे। तो आपने ये सोच लीजिए ना कि हमको साबूदाना हमने छोड़ दिया। कोई बोले तो हमने बोल दीजिए कि हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। अब उनको क्या इतना बताना है कि किस लिए छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? अगर कोई बाहर के लोग पूछ रहे हैं तो उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भक्त है उनको आप बोल सकते हैं, त्याग करते हैं आप। हाँ, तो वैसे ही हम छोड़ दिए, हमको नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा चीज़ जो हमको कृष्णा से दूर ले जाए, हम उसको पाने का सोच भी सकते हैं। हमको नहीं चाहिए भाई, लोग क्या करते हैं, हमको क्या मतलब? हमको कृष्णा से दूर ले जाएगा ना, लोगों को कृष्णा से दूर थोड़ी ना ले जाएगा। वो तो अपनी जागृति अनुसार करेंगे। हम कृष्णा से दूर हो गए तो हम क्या करेंगे फिर? हमारे पास क्या बचेगा? इसीलिए बोलते हैं हमेशा हायर प्रिंसिपल लेकर के चलो। ऊंचा सिद्धांत है, इसको पालन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ओके, यस। कोई और किन्हीं की जिज्ञासा? परंतु ये सब के बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा लक्ष्य कभी ये नहीं है कि मैं सुपरसीड करके दिखाऊं, अच्छा वो बुरा कर रहे हैं, ये लो मेरा अच्छा। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करना है, हम अपना काम। यस। किन्हीं और की कोई कोई जिज्ञासा है? नहीं? नहीं है? चलिए तो कीर्तन सुनते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा है तो चैट में फिर भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए और लक्ष्य एकदम क्लियर रखिए, करते जाइए। कोई भी कष्ट आए मेरे को बताइए, बाकी डिवोटीज को बताइए, बताइए, पर रुकिए मत। सब कीजिए पर रुकिए मत, रुकिए मत। ये अभी टाइम स्टॉप करने का नहीं, समय है काम करने का। रुकिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।